আপুনি চাই আছে বিগ ব্ৰেকিং অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। এপশেক পূৰ্বেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যোৱা নিশাৰ আক্ৰমণ। পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ দুসপ্তাহৰ পাছত ভাৰতৰ আক্ৰমণ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পূৰ্বৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকতকৈ অধিক ফলপ্ৰসূ। 2019ৰ বালাকোট, 2016ৰ উৰি আক্ৰমণতকৈ সফল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। বাহালবলপুৰত থকা জৈশ-ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ। মুৰিদকেত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ। ভাৰত ভূমিৰ পৰা লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট ড্ৰোনেৰে এই আক্ৰমণক সফল বাস্তৱ ৰূপ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই। যি আক্ৰমণৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এপশেক পূৰ্বেই এই আক্ৰমণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল। ব্যক্তিগতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। এপশেক পূৰ্বেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যোৱা নিশাৰ আক্ৰমণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট। পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ দুসপ্তাহৰ পাছত ভাৰতৰ এই আক্ৰমণ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পূৰ্বৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক, 2016 চনৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আৰু 2019 চনৰ বালাকোটত এৰিয়েল ষ্ট্ৰাইক, সেই আক্ৰমণতকৈও সফল এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। বাহাবলপুৰত থকা জৈশ-ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ আৰু মুৰ্দিকেত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ। ভাৰত ভূমিৰ পৰা লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট ড্ৰোনেৰে ভাৰতৰ এই আক্ৰমণ। আৰু ইপিনে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত মৃত্যু হোৱা শুভম দ্বিবেদীৰ পত্নীয়ে ভাৰতে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই আক্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জনায়। নৱবিবাহিত দম্পতি পেহেলগামৰ বেচৰণ উপত্যকাত ফুৰিবলৈ গৈছিল, প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেনে সময়তেই নৰকত পৰিণত কৰিছিল পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। পত্নীৰ সন্মুখতে ধৰ্মৰ কথা সুধি নাম, উপাধি, পৰিচয় তথা কাপোৰ খুলি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিলে। তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া শুভম দ্বিবেদীৰ পত্নীয়ে। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। এয়া অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত পাকিস্তানত এতিয়া আলোড়ন। পাকিস্তানী নাগৰিকৰ মুখতো আক্ৰমণৰ ভয়াৱহ বিৱৰণ। মাছুদ আজহাৰৰ মাদ্ৰাছাত আক্ৰমণৰ কথা ক'লে পাক নাগৰিকে। পাকিস্তানৰ বাহাবলপুৰৰ নাগৰিকৰ এই ভাষ্য। পাকিস্তানী সেনা কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা। পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও ককৰ্থনা। যুৱকজনৰ মতে 4টা মিছাইলেৰে আক্ৰমণ মাদ্ৰাছাখনত। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर।
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। इफाले पेहेलगाम नरसंहारत मृत्यु हुआ काश्मीर तथा एकमात्र मुसलमान युवक आदिल हुसैनर पितृ सायेद हाउदब शाहे जोआ निशार अभियानक लई आनंद प्रकाश करे। ये कह रहा हूँ कि जिन 26 जवानों की लाशें गई हैं उनका बदला आज फौज ने और गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसका बदला लिया है, तो हम इसमें खुश हैं। हम ये खुशी चाहते हैं कि उसने इसका बदला ले लिया और उन जो वहाँ पे जिनकी जाने गई, उनकी बेगुनाह जाने गई, उनकी लाशों को भी इससे शांति मिली। भारतर ऑपरेशन सिंदूरर पाछते तात्क्षणिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिছে আমেরিকাৰ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्राम्पे। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. আমেরিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে যি সময়ত পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিছিল তাকে নকৰি ভাৰতক প্ৰৰোচিত কৰি আহিছে পাকিস্তানে। সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়া, সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়া পাকিস্তান অকলশৰীয়া। সন্ত্ৰাসবাদক লালন পালন দি অহা পাকিস্তানে এতিয়া বুজিছে কিমান ভয়াবহ অপৰাধ পাকিস্তানে কৰিছে, যাৰ বাবে আজি পাকিস্তানৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হোৱাৰ পথত, যাৰ বাবে পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণৰ ভাবুকি দি বৃথা চেষ্টা চলাইছে ভাৰতক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ। পৃথিৱী ধ্বংস কৰাৰ ভাবুকি দি বৃথা চেষ্টা চলাইছে ভাৰতক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ। এতিয়া থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে পাকিস্তানে। সমগ্ৰ বিশ্বত যেন এঘৰীয়া হোৱাৰ পথত এতিয়া পাকিস্তান। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আজি শ্ৰীনগৰত সকলো অসামৰিক বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে, স্থগিত ৰখা হৈছে সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। এই মুহূৰ্তত শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया का मेजर एक्शन हुआ और इस एक्शन के बाद आज दिन के लिए जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल ऑपरेशन है उसे रोक दिया गया है। डायरेक्टर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि इस एयरपोर्ट पर आज दिन में कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाएगी। जैसे से आपको मालूम है, इंडिया ने रात के अवकात में पाकिस्तान पर एक्शन किया और उस एक्शन के बाद ये जो एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार की गई है। वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर चूंकि आज दिन में कई परवाजें थी और इस एयरपोर्ट पर अब चूंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, डायरेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा इस एयरपोर्ट पर आज दिन में कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाएगी और एहतियाती तौर पर ये जो इक़दाम है वो किया गया है। ये देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर जो है कहीं ना कहीं जो जिनकी परवाज थी, स्केड्यूल फ्लाइट्स थी, वो आ रहे हैं और यहाँ से अब वो वापस जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से आपको दिखाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स थी और वो अब आ रहे हैं और यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, इंडिया का मेजर एक्शन हुआ और सबकी नजर इस एक्शन पर थी और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार कह रही थी
कि वो कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई हुई। रात के दौरान पाकिस्तान के 9 जगहों पर इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया, और उस टारगेट के बाद ये जो एयरपोर्ट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर जो एयरफील्ड है इसे आज दिन के लिए एहतियाती तौर पर बंद किया है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे যদি কিবা প্ৰত্যুত্তৰ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ মানে আমাৰ যিটো মনৰ যি ফিলিং সেইটো অলপ ভাল হৈছে। যোৱাকালি ৰাতি 2টামান বজাত দিলে, এতিয়া চাওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। আচলতে সকলোৱে বিচাৰিছিলে যে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক পাকিস্তানক, আৰু এই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰখনে যি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে সেন্দুৰ নামে ইয়াক অভিহিত কৰিছে এই অভিযানৰ অপাৰেশ্যন। হয় হয়, গম পাইছোঁ কথাটো। হয়, এতিয়ালৈকে 9টা মিছাইল গৈছে, 9টা 13 ছাইটত আঘাত কৰিছে। পাকিস্তানো হুংকাৰ এটা দি আছে, কিন্তু নোৱাৰিব তেওঁলোকে, আৰু সমগ্ৰ দেশবাসী একত্ৰিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে। ভাৰত নিশ্চয় জয় হ'ব। নিশ্চয় নিশ্চয়, কোনো সন্দেহ নাই, নিশ্চয় হ'ব। সম্পূৰ্ণ প্ৰি প্লেনত এই কাম আৰম্ভ হৈছে, আৰু গতিকে এয়া এক স্বাভাৱিকতে ভাৰতৰ জয় নিশ্চিত। সকলো অপাৰেশ্যনত প্লেনিং দৰকাৰী, প্লেনিং থাকিবই, আৰু প্লেনিঙত তেনেকে আগবাঢ়ি গৈছে। ভালে হৈছে। মইতো এইটো আৰু আমাৰ পাকিস্তানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক সদায় আমাৰ হেৰি কৰি থাকে, গতিকে মই এইটো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই ভালে পাইছোঁ। যিহেতু পাকিস্তানে যিটো কাম কৰিছে সেইটো ভাৰতবৰ্ষে নিশ্চয় প্ৰতিৰোধ ল'ব লাগে, মই এইটোৱে ভাবোঁ। এই পৰিকল্পিত হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে, আৰু আমি জানাত কোনো পৰ্যটকক এনেকে নিৰীহভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰা আমি কেতিয়াও দেখা নাই। গতিকে ইয়াত আমাৰ মানে অন্তৰত এনেকুৱা জুই জ্বলি আছে যে মানে লগে লগে যেন আমি এই উগ্ৰপন্থীবিলাকক আমি নিশেষ কৰিব পাৰে আমাৰ দেশে। গতিকে আমি এই আহ্বান কৰিছোঁ। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যদি দেশ মাতৃৰ কাৰণে প্ৰাণ উচৰ্গা দিব লাগে সকলোৱে সাজু আছো? একদম সাজু আছোঁ। আমাৰ ল'ৰাক পঠাম, ছোৱালীক পঠাম, দৰকাৰ হ'লে নিজেও যাম। আজি 60 ইয়াৰ্ছ হৈছে তথাপি যাম। हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए। जो हमारा अटैक हुआ था पहलगाम में, तो उनके ऊपर कुछ मतलब बड़ा ही जोरदार अटैक किया है। ये आगे भी होता रहे, और हम ये कहते हैं कि जो हमारे उस दिन 29 लोग मरे थे, उनके 29 लाख लोग मरे जाएं। हाँ जी, तो आज खुशी है जो इंडियन आर्मी ने, हमें बहुत खुशी है कि उनके लोग मारे हैं, और आगे भी मारते रहे, उनको पता चले कि इंडिया आर्मी भी कुछ है। सर मेरा नाम आतिश कुमार नंदा है। मैं बताएं क्या कहना चाहते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्यों हुई है, क्या हुआ था? सर जो रात को 1 बजे सिंदूर ऑपरेशन किया इंडियन आर्मी ने, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जो उन्होंने पहलगाम अटैक किया था। अच्छा किया उन्होंने, इंडियन आर्मी को उनका जवाब देना चाहिए जिन्होंने अटैक किया था, और जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान को उनका वो मिलना चाहिए, इंडिया के लोगों को रिवेंज दिलवाना चाहिए उन्होंने। थैंक यू। देखते हैं जो हम पाकिस्तान पे अटैक किया है, सर अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक अच्छा पीस की बातें नहीं मानता, वो लड़ाई के साथ ही मानता है। तो क्या नाम क्या सर आपका? मेरा कैप्टन शेर सिंह, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और इन बच्चों को जहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। सर कैसे देखते हैं जो ये स्ट्राइक हुई रात को, पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई है, क्यों हुई है, और क्या चाहते थे बॉर्डर पे लोग? बार बार पाकिस्तान जो है अटैक करता है, मिलिटेंट भेजता है उनको हमारे इलाके में, और हमारे इलाके में वो आके खलबली मचाते हैं और कुछ लोगों को मारते हैं। और पहले भी हमारे हिंदुस्तान ने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अभी इस बार 22 तारीख को पाकिस्तान ने मिलिटेंट भेजे तो और ही तरीका अपनाया, जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर बोला कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी की पतलून भी खिलाई, किसी को कुछ बोला, किसी को बोलो नमाज पढ़ो, तो उन्होंने औरतों को छोड़ दिया और औरतों को बोला जाओ मोदी को बताओ। लेकिन आज रात 1 बजे हमारे हिंदुस्तान ने भी उसके ऊपर उनके जो 9 अड्डे थे मिलिटेंटों के, उनके ऊपर अटैक किया और भारी तादाद में उनको नुकसान पहुंचाया, ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए कि हम हैं। कि वो बार बार इनको भेजता था और बार बार भड़काता था हमारे बरखिलाफ, जिससे हमें नुकसान होता था। और हमारी लोगों की यही थी ख्वाहिश थी कि एक बार पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब हुआ, जिसमें लोगों के दिल को शांति हुई, जिनके
हस्बैंड खो गए थे। আৰু ইয়াত দেশৰ জনতা উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, দেশৰ জনতা উৎসাহিত হৈ পৰিছে এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ এই সফল অভিযান ভাৰতীয় সেনাৰ। পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ, পাকিস্তানক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ, পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দি অৱশেষত ভাৰতীয় সেনাই এই পৰাক্ৰম দেখুৱালে আৰু যাৰ বাবে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ, এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবাসী উৎসাহিত হৈ পৰিছে। ন্যায় পালে পেহেলগাম কাণ্ডৰ, এক প্ৰকাৰ ন্যায় পালে পেহেলগাম কাণ্ডৰ ভুক্তভোগীয়ে। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ লৈ আহিব সতীৰ্থ গীতাশ্ৰীয়ে।